غزہ کا سب سے بڑا شفا اسپتال عملی طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال کے دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیے ہیں۔ اسپتال میں بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے 6 نومولود بچے اور 9 دیگر مریض دم توڑ چکے۔ الشفا اسپتال کے اطراف حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی اسنائپر اسپتال میں موجود مریضوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا اسپتال خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہنا ہے کہ الشفا اسپتال پر کنٹرول سے شمالی غزہ کے 50% حصے پر قبضہ ہو جائے گا۔ پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ برسلز پریس کلب میں پاکستان سمیت اوائسی ممالک سے تعلق رکھنے والے 20 سفیروں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجتماعی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اسرائیل کو جنگی جرائم کی وجہ سے مجرم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سفیروں کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو اسرائیل جبر سے نجات دلایا جائے اور انہیں بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی یہی کہنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں کابینہ اراکین کو وزارتیں تفویض کر دی گئی ہیں۔ اعلامیے کے مطابق سعید مسعود شاہ کو اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن انٹر پرونسل کوارڈینیشن، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر کو جیل خانہ جات ریلیف، سوشل ویلفیئر، زکوٰۃ و بشر اور اسپیشل ایجوکیشن سمیت وومن امپاورمنٹ کے محکمے تفویض کیے جا چکے۔ احمد رسول بخش کو خزانہ ریونیو، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکوٹیکس کا قلمدان دیا گیا، جبکہ زراعت، لائف سٹاک، ماحولیات اور وائلڈ لائف کی وزارتیں آصف رفیق کے سپرد کی گئی ہیں۔ ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر بشریٰ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، جہاں انہوں نے زیر التوا مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور ضمانت قبل از ضبط گرفتاری کی درخواست دائر کی ہے۔ دوسری جانب توشخانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بشریٰ بی بی کی توشخانہ جعلی رسیدوں کے کیس اور چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست ایڈیشنل سیکریٹریٹ اور سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک توشخانہ کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر درخواست گزار کے خلاف وکیل کو تیاری کی مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے 1947 سے لے کر اب تک کی توشخانے کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کے خلاف شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ضلع مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے سرداری چنو خان لغاری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران سردار چنو خان لغاری نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سردار چنو خان لغاری نے قائد نواز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت پر سردار چنو خان لغاری کو خوش آمدید کہا اور مبارکباد پیش کی ہے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جوڈیشل مجسٹریٹ محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اینٹی کرپشن نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے، جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ اسد کیسر کو گزشتہ شب اسلام آباد سے ثوابی منتقل کیا گیا تھا۔ ان پر گجو خان میڈیکل کالج ثوابی کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کرنے کا الزام عائد ہے۔ صوبہ دارالحکومت میں اسموگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور نے ایک بار پھر دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
स्मोक के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो चुका। लाहौर शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड किया गया है। आमिर टाउन में AQI 444, माल रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रहा। मौसम के हवाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। सूबाई दारकूमत में कम अज़ कम दर्जा हरारत 13, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। गरीब आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारी करने लगी है। मतलब भर में बिजली ₹1.30 मजीद महंगी होने का वाज़ इम्कान। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर आज 3 बजे समाअत करेगा। बिजली महंगी होने की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 15 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दी गई है। इसी तरह नेपरा आज मरम्मत और ऑपरेशन की मद में 4 अरब 61 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। और मुसलसल बुलंदी के जानिब गामजन अमरीकी डॉलर आज अचानक नीचे आ गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर चंद पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता होने के बाद ₹287.10 का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹287.55 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया, जो बाद में मनफी में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सो इंडेक्स 4 पॉइंट्स की कमी से 56,519 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर सो इंडेक्स 56,523 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि गजा का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल अमली तौर पर गैर फाल हो गया है। इसराइली फौज ने अस्पताल के दरवाजों के सामने टैंक खड़े कर दिए। अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन न होने से 6 नौमौलूद बच्चे और 9 दीगर मरीज दम तोड़ गए हैं। अल शिफा अस्पताल के अतराफ हमास और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें भी ताहाल जारी हैं। इसराइली स्नाइपर अस्पताल में मौजूद मरीजों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इसराइली हुकूमत का अस्पताल खाली करने का हुक्म देते हुए ये कहना था कि अल शिफा अस्पताल पर कंट्रोल से शुमाली गजा के 50% हिस्से पर कब्जा हो जाएगा। अस्पताल के बच्चों के ICU यूनिट का इंतजाम संभालने वाले बरतानवी इदारे ने बताया कि बहुत ज्यादा बीमार बच्चों को कहीं और मुंतकिल करना पेचीदा अमल है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त अल शिफा अस्पताल के अंदर 650 मरीज, 500 अमले के अफराद और 2500 के करीब बेघर अफराद मौजूद हैं। गजा के तकरीबन तमाम ही अस्पताल अमली तौर पर बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ ना अदवायात हैं और ना ही बिजली। इमारतें तो तबाह हो चुकी हैं। इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 11,200 से तजावुज कर चुकी, जिनमें 4,630 बच्चे और 3,130 खवातीन के अलावा 190 डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा कर दिया है। ब्रसेल्स प्रेस क्लब में पाकिस्तान समेत OIC ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 20 सफीरों ने फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इसराइल को जंगी जराइम की वजह से मुजरिम करार देने का मुतालबा किया गया। सफीरों का कहना था कि गजा के लोगों को इसराइली जबर से निजात दिलाई जाए और उन्हें बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि इसराइल को गजा में अल शिफा अस्पताल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनानी चाहिए। वो इस मसले पर इसराइली फौज से राबते में हैं। उधर आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अल शिफा नाशों के ढेर के बायस कब्रिस्तान बन चुका है। 600 अफराद अस्पताल में मौजूद हैं। तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया कहते हैं कि इसराइली हुकाम ने अभी तक गलने सड़ने वाली नाशों को अस्पताल से ले जाकर दफनाने की इजाजत नहीं दी। सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद, सिपाही अब्दुल्ला शहीद, जिन्होंने 12-13 नवंबर 2023 की रात मेन एरिया मीर अली में शहादत कबूल की। शुमाली वजीरिस्तान जिला बनू में पेश किया गया शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विसेज फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। ये कुर्बानियां मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म और पुरअज़्म रहने के हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के निगरान कबीना अरकान की वजारतें तफवीज़ कर दी गई हैं। इलामिया के मुताबिक सईद मसूद शाह को एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरप्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन बनाया, जबकि रिटायर्ड अरशद कैसर को जेल खाना जात, रिलीफ, सोशल वेलफेयर, ज़कात, स्पेशल एजुकेशन समेत वुमेन एम्पावरमेंट के महकमे तफवीज़ किए गए हैं। अहमद रसूल बख्श को खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नार्कोटिक्स का कलमदान दिया गया है, जबकि ज़राअत, लाइफ स्टॉक, माहौलियात और वाइल्ड लाइफ की वजारतें आसिफ रफ़ी के सपुर्द की गई हैं। इसी तरह डॉक्टर नजीबुल्लाह स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुंतखब। खबर आपको दें कि मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पीटीआई लीगल टीम के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जहां उन्होंने ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात फराहमी और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई, जिसके बाद वो अदालत से रवाना हो गई। दूसरी जानिब तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की तोशाखाना जाली रसीदों के केस और चेयरमैन पीटीआई के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने समाअत की है। खबर आपको दें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशाखाना की तफसीलात फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी की मोहलत दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने 1947 से लेकर अब तक तोशाखाना की तफसीलात फराहम न करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आपको इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी, आपको 2 रोज की मोहलत दे देते हैं, आप मजीद तैयारी कर लें। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी के लिए मजीद मोहलत देते हुए केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से जिला मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपीए सरदार चुन्नू खान लगारी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सरदार चुन्नू खान लगारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार चुन्नू खान लगारी ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर सरदार लगारी को खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद भी पेश की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की खदमत के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। खबर आपको देंगे मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात ने मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात के दौरान रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद रांचा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इस मौका पर साबिक कैमैनी नासिर बोसाल और पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह ताडर भी मौजूद थे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सबको ममार वतन जमात में खुश आमदीद कहता हूँ। मुस्लिम लीग नून आवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी हामी जमात है जो आवाम की खिदमत में अपना सानी नहीं रखती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने का फैसला कुन जदोजहद कर ली गई है। आपके आने से पाकिस्तान की मुआशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जदोजहद मजीद तेज हो जाएगी। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक मशीर हुकूमत अता ताडर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत बनाएगी। बिलावल कहते हैं कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, मगर वज़ीर आज़म इस बार रायवंड से ही होगा। पीपल्स पार्टी से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, नाराजगियां गिले शिकवे खत्म हो सकते हैं। नून लीग तमीर और तरक्की के बयानिया पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अता ताडर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ का रोजमर्रा के बुनियाद पर नैब ट्रायल हुआ था क्योंकि उन्हें नाअहल करना मकसूद था। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी मर्जी कत ममलिकत के बाद हैं, उनसे बातचीत जारी है मगर वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहते। की पेशी पे आर्गूमेंट्स देने आया था इलेक्शन कमीशन में। आज खासा लंबा सेशन चल रहा है डिलिमिटेशन के हवाले से। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता रहा है और मैं चाहता हूँ कि इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम रहे।
تو میں نہیں سمجھتا یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں جب میدان میں آپ اترتے ہیں دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ مائنر ڈفرینسز ہوتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بون آف کنٹینشن ہے یا کوئی ہمارے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپس میں بیٹھ نہ سکیں. ہم کولیشن گورنمنٹ میں ساتھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کوئی گمبھیر بات نہیں ہے، نہ ہی اس پہ پریشان ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج مجھے ایک نوٹس سرو ہوا ہے فرح گوگی صاحبہ کی طرف سے. اب پتہ نہیں انہوں نے 5 ارب الف سے لکھا ہے این سے لکھا ہے، وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا، اس کی میں وضاحت ان سے لے لوں گا. مگر جو میں نے ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کی، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کی، وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. تو ان کو چاہیے کہ پاکستان آ کے قانون کا سامنا کریں. مجھے نوٹس دینے سے کوئی نہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سونیا دا گلا کرا، میں تو جگ فاری بسم اللہ کر. سر لیول پلینگ فیلڈ کا تو آپ سمجھتے ہیں تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ جی دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ بالکل ملے گی، مگر اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص ریپ کرتا ہے یا مرڈر کرتا ہے یا اغوا برائے تاوان کرتا ہے تو اس کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے کس نے الیکشن لڑنا ہے. گوشہ خانہ کا جہاں تک معاملہ ہے، سائفر کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے بعد 9 مئی کا جہاں تک معاملہ ہے، جو کیسز ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، القادر کا جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہ کیسز بھی ہوں، آپ نے جرم بھی کیا ہو، پھر آپ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روکے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ سابق اسپیکر اسد کیسر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جوڈیشل مجسٹریٹس محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اینٹی کرپشن نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں. افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں. بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بارڈر پر موجود ہے. 13 نومبر کو 3239 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے تھے. 3239 افغان شہریوں میں 892 مرد، 833 خواتین اور 1514 بچے اپنے ملک چلے گئے. افغانستان روانگی کے لیے 354 گاڑیوں میں 580 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے. اب تک کل 2,23,637 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. اس پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راولپنڈی سے ہمارے سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی. جی علی، بتائیے گا افغان باشندوں کی روانگی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی، غیر قانونی افغانی باشندے اپنے وطن کا سلسلہ جاری ہے. 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی باشندے اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکومت پاکستان نے غیر ملکی غیر قانونی افراد کو محفوظ انخلاء کی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہوئے ہیں. افغانی باشندوں کے باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ عارضی رہائش گاہ مختلف اضلاع میں تمام سہولتیں میسر کی گئی ہیں. بذریعہ ترہم اور چمن کے بارڈر کی بنیاد سے ہزاروں کی تعداد میں افراد اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. رضاکارانہ طور پر افغانی باشندے واپسی کے لیے بڑی تعداد میں چمن اور ترہم کے بارڈر میں موجود ہیں. اگر میں بات کرنا چاہوں تو 13 نومبر کو 3239 غیر قانونی طور پہ جو باشندے تھے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. 3239 افراد میں سے شہریوں میں سے 892 مرد شامل تھے، 833 خواتین شامل تھی اور 1514 بچے اپنے ملک میں جا چکے ہیں. افغانستان روانگی کے لیے 354 گاڑیوں کا اہتمام کیا گیا. اگر میں خاندان کی بات کرنا چاہوں تو 580 خاندان اپنے وطن میں اس عمل میں واپس ہوئے. اب تک 2,83,637 سے غیر قانونی طور پر جو رہنے والے افغان باشندے تھے اپنے وطن جا چکے ہیں. جی بہت شکریہ علی اصغر بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر عدالتی احکامات کی دھجیاں ہوا میں اڑا دی گئی ہیں. 12 نومبر کو دیوالی کے موقع پر ہندوستان بھر میں پٹاخوں سے فضا شدید آلودہ ہو گئی. دیوالی کے موقع پر ہندوستان کے رہائشیوں کی جان شدید خطرات کا شکار ہوئی. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان پوری دنیا میں فضائی آلودگی میں سر فہرست، جبکہ
दिल्ली फजाई आलूदगी में दुनिया का सबसे आलूदा और गंदा तरीन शहर करार पाया है। राइटर्स के मुताबिक फजाई आलूदगी के बायस से दिल्ली में तालीमी इदारों को बंद किए और एक माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है। दिल्ली में पिछले 40 रोज से फजाई आलूदगी मजीद तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन पूरे मुल्क में कानून की पासदारी नहीं की गई। भारतीय अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए ममनुआ केमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल किया। फैसले की खिलाफ वर्जी में बीजेपी और उनके अहलकार सर फहरिस्त। हिंदुस्तानी पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने की कई अनसुनी दास्तानों में एक कहानी सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की भी है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद का ताल्लुक मुल्तान से है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद 18 अक्टूबर 2023 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियों में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए दहशत शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद ने सोगवारान में वालदैन, बेवा और बच्चे छोड़े हैं। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा है कि मेरे बेटे ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, हमें कोई अफसोस नहीं। वालिद सिपाही अब्दुल हमीद शहीद के वालिद का मजीद ये भी कहना था कि मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने मुल्क की हिफाजत के लिए शहादत हासिल की है। मेरे बेटे ने दुश्मनों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की वालिदा कहती हैं कि हमें अब्दुल हमीद की शहादत पर फख्र है। मेरे बेटे ने मुल्क की खातिर दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने से अब तक रेडियो पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 4 माह से तनख्वाहों की अदायगी न होने की वजह से मुलाजमीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। वजारत इत्तलात खामोश। साबिक DG रेडियो ताहिर हसन ने गैर जरूरी रेनोवेशन के नाम से रेडियो पाकिस्तान का अकाउंट खाली कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने निगरान विभाग वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से 4 माह की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। रेडियो पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जुलाई से लेकर अदायगियां नहीं हो सकी हैं। रियासती ब्रॉडकास्टिंग इदारे के मुलाजमीन फाके काटने पर मजबूर हो चुके हैं। रेडियो इंतजामात समेत वजारत इत्तलात ने खामोशी इख्तियार कर रखी। कौमी रेडियो के डेली विजेज फाका कशी पर मजबूर हैं। बाबसूख ज़राए से मालूम हुआ नए DG रेडियो ने जब डायरेक्टर अकाउंट से पूछा तो उन्होंने बताया दिसंबर तक की रिलीज साबिक DG ताहिर हसन उड़ा चुके हैं। दिसंबर की तनख्वाह के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में गंदम की काश्त के सीजन के आगाज के साथ ही खाद माफिया ने यूरिया और DAP खाद फी बैग सरकारी रेट से 1000 जायद ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दी है। जिला इंतजामिया खाद माफिया से किसानों को सरकारी कीमतों पर खाद की फराहमी मुमकिन न बना सके। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सजाद चिश्ती। गंदम की काश्त शुरू होते ही पाकपतन में खाद माफिया की फी बैग खाद 1000 रुपए ब्लैक में फरोख्त जारी। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने खादों के रेट तो मुकर्रर किए हैं मगर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं। गंदम की बिजाई शुरू है, मार्केट से खादें नायाब हो चुकी हैं। DAP का कंट्रोल रेट 12,700 रुपए का है, जबकि मार्केट में वो 13,800-900 में मिल रही है। इसी तरह यूरिया जिसका कंट्रोल रेट 3450 रुपए बनता है, मार्केट में 4200 रुपए की बिक रही है। काश्तकार कहाँ जाए? काश्तकार को फसलों में भी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट ने खादों के रेट फिक्स किए हैं तो उस रेट पर काश्तकार को खादें मिलनी चाहिए। खाद माफिया अपनी मर्जी के रेट से दे रहे हैं और अगर कंट्रोल रेट से 1000 रुपया इजाफी बोरी का दें तो मिलती है, अगर ना दें तो कहते हैं कि हमारे पास खाद नहीं है। और जो खाद माफिया है वो जीत गया है और जो इंतजामिया है वो हार गई है। सरापा एहतजाज बने किसानों का कहना था कि यूरिया और DAP खाद किसानों को मुकर्ररा कीमत पर न मिलने से गंदम की काश्त मुतासरा हो रही है। कंट्रोल हो चुकी हैं। ये जो हमारी इंतजामिया है, जब हमसे गंदम इन्होंने उठानी होती है तब ये बहुत सरगर्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले और जिली इंतजामिया एक्टिव हो ताकि किसानों को खाद मिल सके। यूरिया खाद के बाद अब DAP खाद की भी ब्लैक में फरोख्त ने कीमतें कंट्रोल करने वाले जिले इंतजामिया के अफसरान की खाद माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर सवाल उठा दिए। कैमरा टीम के
रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के बावजूद शहरियों के बुनियादी मसाइल हल न हो सके। शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा, जबकि गली मोहल्लों समेत मेन शाहराह भी कूड़ा करकट में तब्दील हो चुकी है, जिसके बायस राहगीरों का गुजरना महाल हो चुका, ताफून फैलने लगा है। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू इंतजामिया की हट धर्मी देखने में सामने आ रही है। शहर भर में जो है कूड़ा करकट के जो है वो अंबार लग चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो ताफुन फैलता दिखाई दे रहा है। कोटद्दू शहर में डिप्टी कमिश्नर तैनात होने के बावजूद जो है शहरियों के बुनियादी मसाइल हैं वो जो है हल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त कोटद्दू की ये मेन शाहराह स्टेडियम रोड है, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल ये है कि शहर भर का जो कूड़ा करकट है वो एक बार फिर जो है वो यहाँ पे फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ के राहगीर हैं उनको जो गुजरने में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे ये कब से सूरत हाल है। ग्रीन बेल्ट भी यहाँ पे निजी फलाई तंजीम ने बनाया था, डीसी साहब की तैनाती हो चुकी है, उसके बावजूद जो इतना कूड़ा करकट अभी भी फेंक के जा रहे हैं, कितनी मुश्किलात है, क्या करेंगे? सर आपके सामने जैसे अभी आपने बताया, पहली बात तो ये कि ये मेन शाहराह है हमारे सिटी की। यहाँ पे 9 से 10 तालीमी इदारे मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तलबा तालबात यहाँ से गुजरती हैं और साथ ही कब्रिस्तान भी है, साथ स्टेडियम भी है। बजाय ये कि इसकी सफाई का निज़ाम बेहतर होने के उल्टा आपके सामने है कि कचरे के अंबार लगे हुए हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर, इसी तरह शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी आप चले जाएँ, पीछे वार्ड नंबर 14 भी मौजूद है, वहाँ पर भी नालियों का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए तो खुशखबरी थी कि DC साहब की यहाँ पर तैनाती हुई। हम सोच रहे थे कि शहर में जो है ना बहुत सारी चेंजेस आएंगी और ये मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मज़ीद मसाइल में जो है ना हमने सामना नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप यहीं के रिहायशी हैं, कब से कितनी मुश्किलात हैं? नालियों का पानी भी हमने देखा है मोहल्ले में। ये जी मोहल्ले के अंदर जो है ना बहुत बुरा हाल है। बाकी ये तो काफ़ी अरसे से डल रहा है। इंतजामिया को कहा है, क्या इंतजामिया को कहते हैं उठाते हैं, कभी कभार उठाते हैं, वरना कब्रिस्तान के अंदर भी गंद डाल देते हैं। 8 से 10 जो वो तालीमी इदारे भी यहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ामिया की बेहिसी का आलम यह है कि इस वक्त भी यहाँ पे जो आप फुटेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो कमेटी का अमला है वो यहाँ पे कूड़ा करकट जो है वो फेंकता दिखाई दे रहा है। बजाय के मुतालबा किया जा रहा है खुदारा डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू जो है वो नोटिस लें, इंतज़ामिया को जो है वो अलर्ट करें ताकि ये कूड़ा करकट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से उठाया जाए और जो ताफुन फैलता हुआ शहरी जो बीमार। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है, खवातीन अपना खुद एग्जामिनेशन भी करा सकती हैं। THQ शोरकोट में भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। खवातीन TB माहरीन से THQ शोरकोट में मुआयना करवा सकती हैं। इस वक्त THQ शोरकोट में डॉक्टर अलीना के साथ हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट कोहिनूर न्यूज़ चौधरी गुलाम शबीर ताहिर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। THQ शोरकोट में आपको बताता हूँ, THQ शोरकोट में आज हमारे पास डॉक्टर अलीना साहबा मौजूद है। हम उनसे ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज हम स्पेशली पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो बहुत ज़्यादा रेशो हो रही है और ये खवातीन को क्या करना चाहिए, बेसिक इसके लिए होती किस तरह से है और इसके क्या असरात नज़र आते हैं और खवातीन को इसलिए क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, डॉक्टर अलीना हैदर हूँ, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एट THQ हॉस्पिटल शोरकोट। अच्छा, ब्रेस्ट केयर के हिसाब से अगर देखें तो इनिशियली अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है ना फीमेल्स को अपने बेबीज़ को लैक्टेट ज़रूर करवाना चाहिए जो उनके अपने हाथ में है। लैक्टेशन का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, वो जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए है। तो लैक्टेशन एक तो बेबी के लिए भी बहुत बेहतर है और फीमेल मदर के लिए भी बहुत बेहतर है, तो लैक्टेशन सबसे पहले करवानी चाहिए। सेकंड, फीमेल्स जो खुद कर सकती हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी डॉक्टर, वो ये है कि वो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं, ठीक है ना। वो जब भी वीकली या ट्वाइस अ वीक जब भी वो बात ले रही हैं तो वो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद करें। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ये होनी चाहिए। अगर कोई गिल्टी, कोई लम्ब, कोई ऐसी चीज़ उनको महसूस होती है जो तकलीफ़ भी उनको नहीं दे रही है तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें इस मामले में, ताकि हम पहले से ही इनिशियल लेवल पे उसकी प्रिवेंशन कर सकें। तीसरी, लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, ठीक है ना। इसमें शाये ना हो, परेशान ना हो कि मेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, हम कैसे एग्जामिनेशन करवाएंगे अपना। तो उसकी सारी सहूलियात हमारे पास इधर हॉस्पिटल में भी हैं, FNA तक की सहूलत है यहाँ पे। तो अगर वो करवा लेंगे इनिशियल लेवल पे, हम डायग्नोस कर लेंगे तो हमारे लिए ट्रीट करना आसान हो जाएगा।
डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप जो हमारा ये हॉस्पिटल में यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि लोगों को ये पता हो बाहर वो लोग ना जाए आपके पास आए? हाँ जी, वेल वुमेन क्लिनिक में हमारी एक WMO स्पेशली इस काम के लिए उनको हमने रखा है। एक पैप्समियर्स मतलब ये कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, और दूसरा ये ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए है। तो वो क्लिनिक स्पेशली डिज़ाइन किया गया उसको। तो जब भी फीमेल्स आती हैं, किसी को कोई लंप की या किसी इस तरह की कोई शिकायत होती है, तो फ़ौरन जो है ना उस पेशेंट को हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, और अगर हमें कुछ भी चीज़ उस लंप के अंदर सस्पिशियस फील हो तो फ़ौरन उसकी FNAC जिसको हम बायोप्सी कहते हैं वो हम भेज देते हैं झंग में आई गेस, या लाहौर जाती है उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट। तो वहाँ से जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है पेशेंट फ़ौरन हमें फॉलो कर लेते हैं, तो हम उसे बेहतर जगह रेफ़र कर देते हैं, और इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि वो टाइमली रेफ़र हो जाते हैं और फ़ौरन से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो है ना जितना इनिशियल लेवल होगा उतना इसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि खवातीन खुद भी अपना एग्जामिनेशन कर सकती हैं और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो THQ शोरकोट में तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। वो फौरन THQ अपने डॉक्टर से आकर रब्ता करें और वहाँ पर जो उनकी तमाम ट्रीटमेंट्स हैं, उनके जो टेस्ट हैं वो वहाँ पे आगे फर्दर लाहौर भेज दिए जाते हैं। जैसे उनका टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और उनको फॉलो अप लेके और डॉक्टर्स उनको मुतलका हमने उनको भेज दिया जाता है ताकि बेहतर अड्डा ज़ख़ीरा में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही ड्राई फ्रूट की मांग में खातिर खा इजाफा होने लगा है। ड्राई फ्रूट की जो कीमतें हैं वो आसमान से बात ही करने लगी हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ड्राई फ्रूट की खरीद शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़ख़ीरा में मौजूद हूँ। मौसम सरमा के आते ही जो ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा होने को नज़र आ रहा है, उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, शहरी से पहुंच से ऊपर हो चुकी है। शहरी जो है ना ख़रीदारी से कासिर हैं। इस वक्त दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस सवाल से इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, जो इनके इतने ज़्यादा रेट बढ़े हैं इसकी क्या वजह है? जो इनके बढ़े हैं रेट, वो महंगाई इतनी है कि माल इतना महंगा है, हाथ से ज़्यादा। जो गाहक किलो लेता था वो अब पाइया पे खड़ा है या आधा किलो पे खड़ा है, और इससे ऊपर कोई भी नहीं जाता। महंगाई इतनी है कि हाथ से ज़्यादा समझ नहीं आ रही। गला मंडी से माल इतना महंगा मिल रहा है कि अब हम परेशान हैं, हम खुद भी परेशान हैं। क्या करें, महंगाई की कोई समझ नहीं आ रही। जो पहले मिलती थी बोरी मूँगफली की, वो मिलती थी 7-8 हज़ार की, अब मिलती है 20-25 हज़ार की। क्या करें, जो गाहक पहले किलो मूँगफली लेता था वो पाइया पे खड़ा है या आधा किलो पे खड़ा है। ये सारे मूंगफली हो गई, अखरोट हो गई, जितना भी ड्राई फ्रूट है सभी रेट बढ़े हैं। जी, दुकानदार का कहना था कि रेट जैसे मंडी से बढ़े हुए हैं, जो भी उसके अलावा कस्टमर बहुत कम हो गया है, खरीदारी करने से कासर है। उनकी जो कीमतें हैं वो उसकी ज़्यादा हो चुकी हैं, इसलिए वो सिर्फ देखने की हसरत भरी निगाहों से सिर्फ ड्राई फ्रूट को सिर्फ देख ही सकता है। खरीदारी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। खबर आपको दें कि डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल मीरपुर खास के वकला की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें जई सिंध महाज के चेयरमैन रियाज अली चांडियों की मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल आमद पर वकला ने भरपूर नमूने से इस्तकबाल किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मीरपुर खास से वहां पर मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल गफार लगारी से। जी लगारी, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की तरफ से एक तकरीब मुनक़द की गई है, जिसके खुसूसी मेहमान जय सिंध बाज के चेयरमैन रियाज अली चांडियों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस हवाले से मेरे साथ जय सिंध बाज के चेयरमैन रियाज अली चांडियों और वकला मौजूद है। इस हवाले से उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। मुल्क में परडे ही कढूं पंजाब में तमाम तेजी से अमल छो आहे। लखे माण्हू KPK पंजाब में कढिया अथनि, इस्लामाबाद में कढिया अथनि, सिंध में 1000 भी माण्हू न निकिरी सघिया आहिनि। त ऐलान ते सरकार अमल नथी करे। सरकार माण्हू आंदा हुआ 43 साल अॻु अफ़गान जंग में माण्हू खणी अचे हुकूमत सिंध में विहारिया। हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे ते माण्हू पंहिंजा कढे। जो माण्हू न कढंदा त सिंध जे माण्हुनि जो एहतजाज जमहूरी ऐं कानूनी हक़ आहे। सरकार जे कयल ऐलान में असां मुतमिन न आहियूं ऐं 4 अरब रुपया सिंध जे ग़रीब माण्हुनि जे खज़ाने में खयां अथनि। उहे पैसा छा पीपल्स पार्टी वांगुरु निगरान सरकार, IG ऐं ॿिया इदारा गॾिजी हड़प कंदा, माण्हू ॿाहिरि कढनि, माण्हू ॿाहिरि न कढंदा। त असां इन सिलसिले में निकिता आहियूं पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट सेशन बार में वापारियुनि
मौसम की तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ इकसाम खास करके इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा होता है, जिनमें फ्लू, खांसी वगैरह शामिल है, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मुतासिर हो रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जानेंगे हिबा अब्बासी से। जी बिल्कुल, मौसम जैसे तब्दील होता है तो बीमारियों जो है वो बीमारियों के फैलने का खदशा भी जो है वो होता है, लाइक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो है फैलती हैं, फ्लू, खांसी और अस्थमा वगैरह हो गया। तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर, उनसे बात करेंगे कि ज़ाहिर है कि सर जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और इसमें जो है वो हर कोई इससे मुतासिर हो रहा है, फ्लू होता है, खांसी होती है, तो क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जी आजकल जो मौसम की जो तब्दीली हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़ास तौर पर बच्चे और जो बूढ़े बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और उसके लिए ये है कि बच्चों को ख़ास तौर पर आप जो है ना कवर्ड रखें और जो ना ज़्यादा कपड़े पहनाएं, और बूढ़ों को भी कम से कम जो है ना वो घरों से बाहर निकलें। और इसके लिए आप जो है ना स्पेशली जो है वो घर में जो है वो कहवा का और उसके अलावा भाप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसके अलावा कोई भी देसी टोटके, इसके अलावा जो भी आप घर में जो है ना वो कोशिश करें। और उसके अलावा जो है मोस्टली जो है ना बच्चों को जो है ना ज़्यादा कवर रखें, और जो है ना घर में कोई ना कोई पैनाडॉल वगैरह या कोई छोटी मोटी मेडिसिन रखें, ठीक है। अगर कोई ऐसा मसला होता है तो उनको फौरी तौर पर जो है ना दे दें ताकि ज़्यादा मसला बढ़े ना। अक्सर ये इनसे ये बाद में प्रॉब्लम ये हो जाता है, तो अक्सर जो बच्चे जो हैं बाद में नमूनिया का शिकार हो जाते हैं, और बड़े लोग होते हैं वो भी, उनका भी सिस्टम जो क्योंकि जिस्मानी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उनको भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें, करीबी क्लिनिक से रजू करें और अपना ख़ास ख्याल रखें। ये बताएं कि सर्दी की वजह से खास करके कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा फैलती हैं, और फिर उनके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्दी की वजह से आप जो स्पेशली जो है आप जो फ्लू है, खांसी होगी है, हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठंड लग जाती है, इसलिए जो है वो आप जो है ना उसके लिए जो है छाती को कवर रखें और गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अस्थमा के हवाले से भी बता दें, क्योंकि मोस्टली बच्चों में भी पाया जाता है, बूढ़ों में भी पाया जाता है, तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करें? अस्थमा का ये है कि बच्चों में खास तौर पे जो है बच्चों का तो ये जो है सर्दी के मौसम में अस्थमा का जो अटैक है वो बढ़ जाता है, बार बार फ्रीक्वेंटली होता है। उसके लिए ये है कि एहतियाती तदबीर पहले से जो है ना वो जो दमे से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करें और डॉक्टर से रजू करें। और बड़ों को भी चाहिए कि वो फौरी तौर घर में आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्टीमर वगैरह हो या कोई निबुलाइजर का भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो डॉक्टर आपको तशखीस करे उसके मुताबिक आप उसका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, देखा आपने जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि हमें जो है वो कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह से सर्दी से बचाव के लिए हमें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मरकज़ शबान ख़त्म नबूवत में फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए और 19 नवंबर को होने वाले गज़ा मार्च के सिलसिले में आमद उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच ने इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मरकज शुबान खत्म नबूवत में आमद उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच ने इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज कलाम पाक की तिलावत से हुआ। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए अहमद सुलेमान बलोच का कहना था, उम्मत मुसलमा का जो मसला दरपेश है वो मसला किबला अव्वल है। अगर मजलूम फलस्तीनियों के लिए वाहिद आवाज सिराजुल हक ने ही उठाई है। अगर अमेरिकी सदर 85 साल की उम्र में नाजायज इसराइली रियासत के दौरे पर जा सकता तो सिराजुल हक बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जा सकता था। तकरीब के शिरका से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था, फलस्तीनियों का फलस्तीन मसला नहीं बल्कि हर मुसलमान का मसला है। फलस्तीन की कामयाबी उम्मत की कामयाबी और शिकस्त सेहोनियों की जीत होगी। गजा का जहाद, मस्जिदुल अक्सा, कुरान और नामूस रसालत की हिफाजत के लिए 37 दिनों में 11,000 माएँ बहनें इसराइल में बेटियां शहीद हो गईं। इसराइल ने हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम जिससे लोहे के लिए इस्तेमाल होता है वो फलस्तीनियों पर इस्तेमाल हो रहा है। मासूम बच्चे जब होश में आते तो कहते हैं पाकिस्तान से कोई आया कि नहीं। फलस्तीनियों के मामले पर हुक्मरान मीर सादक व मीर जाफर वाला किरदार अदा कर रहे हैं
OIC में उम्मीद थी कि इसराइल का इक्तिसादी बाइकाट या आलमी फलस्तीन फंड कायम करेंगे या 48 घंटे में इसराइल का तेल व गैस बंद करेंगे। क्या तमाशाई बनकर कलमे का हक अदा कर सकते हैं? रोजे महशर गिरबान में हाथ डालेंगे, कहेंगे जब कुरान के लिए लड़ रहे थे तो आप तमाशाई क्यों बने रहे? तो क्या जवाब देंगे कि अमेरिकी वजीर खारजा 3 बार तल अबीब में कहते यहूदी पहले हों, $8 बिलियन अमेरिका इमदाद से फलस्तीनियों के कत्ल आम के लिए दे दिए। मिस्री बॉर्डर क्रॉस कर फलस्तीन नहीं गए। अगर फलस्तीनियों का साथ ना दिया तो इसराइल, मिस्र, सऊदी अरब, शाम, उर्दन, मदीना मुनव्वरा तक पहुंच सकते हैं। क्या ये हमें चैलेंज नहीं? बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया तो इनका कब्जा मदीना मुनव्वरा पर हो जाए। अहले लाहौर गजा की आवाज को सुनेंगे और इनका साथ देंगे और 19 नवंबर को अहले लाहौर से गजा मार्ग। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इमरान ने डिप्टी कमिश्नर को अमले समेत मामू बना दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने आलूदगी फैलाने वाले कंसर्न डिपार्टमेंट माहौलियात को धुएं की वीडियो भेजी, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान मियां ने रिमार्क्स दिए हैं कि सफेद धुएं का कोई इशू नहीं है, जबकि मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जवेद अकरम कहते हैं कि धुआं सफेद हो या काला दोनों ही खतरनाक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जवेद अकरम के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तो उनकी तरफ से जो इंडस्ट्री के ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ लाहौर जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली वो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो है बाकियात को जलाना और इस तरह के मामलात हैं। हमारे साथ मिनिस्टर हेल्थ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप स्मोक को देख रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पूरी इंसानी ज़िंदगी को मुतासर कर रखा है, इसके ऊपर क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एहतियाती तदाबीर ये हैं कि बहुत रात को अलग सुबह नहीं ड्राइव करें, क्योंकि विजिबिलिटी ख़राब होती है तो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट्स का ख़तरा है। मोटरवे वैसे भी बंद कर दी जाती है। और दूसरा, अगर आप सिगरेट पीते हैं फौरी तौर पे उसको तर्क कर दें, क्योंकि आपकी जो आलूदगी की वजह से सांस में मल्टीप्लाई हो जाता है हार्म जो है। तो इसलिए पानी गरारे करें, साफ़ पानी से बार बार करते रहें, आँखों को धोते रहें। और अगर आपकी इंडस्ट्री ओन करते हैं तो खुदारा उसको सेफ़ इंडस्ट्री बनाएं। और अगर आपकी गाड़ी है तो उसकी ट्यूनिंग कराएं और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डलवाएं। आम फ्यूल बोतलों वाला नहीं लें, स्मगल्ड फ्यूल नहीं लें, ना मोबिलाइल इस तरह का डालें। वो आपकी गाड़ी का भी बेड़ा गर्क करेगी और आपकी सेहत का भी बेड़ा गर्क करेगी। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ तक स्टबल बर्निंग का तल्लक है कि जो बाकियात राइस की जलाई जा रही हैं, उसके लिए हमें ख़र्चा करना पड़ेगा। 50 अरब का करीब ख़र्चा है कि हमें मशीनें लेनी पड़ेंगी, हैप्पी सीडर्स, ताकि जो उनको पिक करेंगी, और उसके बाद इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन हमें अकेला बैन करने का फ़ायदा इतना नहीं होगा, इंडिया को भी बैन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मज़ीद बताइएगा, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर का ये कहना है जो सफ़ेद धुआं हैं वो इंसानी ज़िंदगी को मुतासर नहीं करता, वो हमारे जो है ना परमिशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और जो काला धुआं है वो सिर्फ ख़तरनाक है। इसमें आप दो बातों पर वजाहत दे दीजिए, क्योंकि आपका ताल्लुक मेडिकल से है, तो आप बेहतर सबसे बता सकते हैं। देखें, दोनों धुएँ मुतासर करते हैं, ऐसी कोई नहीं है। एक्सीडेंट्स तो दोनों के, विजिबिलिटी तो दोनों कम करते हैं, लेकिन उनका कहना ये सही है कि ये ज़्यादा हार्मफुल है, इसका ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि इसमें लेड होता है, इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुज़र सेहत हैं। तो डेफिनेटली इससे इरिटेशन भी ज़्यादा होती है। तो सेहत के लिहाज से दोनों ख़राब हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी हमारे साथ निगरान मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जवेद अकरम मौजूद थे। इनका ये कहना है कि सफ़ेद धुआं हो या काला धुआं दोनों इंसानी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। हाल ही में असिस्टेंट डायरेक्टर जो फील्ड के हैं महकमा माहौल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी। तर्जुमान DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ख़म अब्बास ने SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ है। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, ज़्यादती, अगवा, डकैती, चोरी, चेकलिस्ट ऑनर और फ्रॉड के 26 मुकदमात ज़ेर बहस आए हैं। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मदी, हनीफा बीबी और आशिक अली कत्ल, खालिद महमूद इक़दामी कत्ल, जबकि तजम्मुल हुसैन अगवा के मुकदमात की तफ्तीश के लिए तलब किया गया।
सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास में DSP इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप शुएब खान समेत SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कारकर्दगी बेहतर बनाने की आखिरी वार्निंग दे दी गई है। मजीद CCPO लाहौर ने इजलास में क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या कहना था? जी बिल्कुल, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर पेशा वाराना जो है वो अमूर का तफसीली जायजा भी लिया गया है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से DSP इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप शुएब खान समेत SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन को आखिरी वार्निंग और कारकर्दगी बेहतर बनाने की जो है वो हदायत की गई है। इसी तरह से सरबराह लाहौर पुलिस कहते हैं कि महकमा पुलिस में अदम दिलचस्पी और गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि इश्तिहारी मुजरमान, आदि चोरों और डाकुओं और मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। CCPO लाहौर का कहना था कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंट बेसिस ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, जबकि सरबराह लाहौर पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राजधानी के मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की भी हदायत जारी कर दी है। कहते हैं SHOs मोटरसाइकिल चोरी और जो है वो झूठे गैंग जो बना रहे हैं उसमें भी जो है वो कमी लेके आए, क्योंकि झूठे गैंग किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जबकि कोताही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। पुलिस एहलकार और अफसरान अपनी जिम्मेदारियां दिलजमी से अदा करें और शहर में जराइम के खात्मे और अमन माहौल को कयाम में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसी तरह से इजलास के दौरान CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और दीगर शुरगा ने SHO गुलशन रावी के वालिद की फातिहा पर इजहार जो है वो तज़ियत और फातिहा ख्वानी भी की है। इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SSP एडमन आतफ नजीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी, जबकि दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत भी हुई थी। CCPO ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर में झूठे गैंग चलान करने वालों के खिलाफ भी जो है वो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जी शुक्रिया वसीम साबिर, अपडेट कर रखिए। शहर लाहौर में चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर ने मॉडल बाजार हेड ऑफिस और मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा किया है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर को ज़ेरे तमीर इमारत के बारे में ब्रीफिंग दी है। तफसीलात जानेंगे जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर को मॉडल बाजार हेड ऑफिस और मॉडल बाजार टाउनशिप का दौरा करवाया। चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर ने ज़ेरे तामीर मॉडल बाजार हेड ऑफिस की इमारत का भी दौरा किया। चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर को पंजाब मॉडल बाजार की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर को ज़ेरे तामीर इमारत बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर ने CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर और पूरी टीम की काविशों को रहा। इस मौका पर CFO मॉडल बाजार नवीद रफाकत अहमद, GM प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस 1 रोशन जमीर, GM प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस 2 सदाम हुसैन, मैनेजर HR एंड एडमिन मारिया इकबाल, लीगल एडवाइजर रब नवाज बलोच और दीगर अमला भी मौजूद था। चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर साजिद खोखर का कहना था कि CEO शाहिद कादर की क़यादत में मॉडल बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। महंगाई के इस दौर में मॉडल बाजार जैसे इदारे का होना किसी नेमत से कम नहीं। जी, मेरा मॉडल टाउन मॉडल बाज़ार का विज़िट आज मैंने शाहिद साहब के साथ किया है और मेरा ये फ़र्स्ट विज़िट है किसी इस तरह की फैसिलिटी का। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो सहूलत आवाम के लिए क्रिएट की गई है ये बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पर सफाई के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और रोज़मर्रा की अशिया जो अवेलेबल हैं वो उनके रेट्स DC रेट की से भी कम रेट्स पे मुहैया किए जा रहे हैं और उन सब चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम के लिए एक बहुत आजकल की महंगाई के दौर में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर का कहना था कि मॉडल बाजारों में अवामुल नास को बेहतरीन सहूलियत दी जा रही है। मॉडल बाजारों में सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए टंसाइल और ट्रालियाँ भी बनवा दी गई है। लाहौर में 10 मॉडल बाजार हैं, एक टाउनशिप में है, एक सब्ज़ाजार में है, एक हरबंसपुर में है, चाइना स्कीम में, इस तरह 10 हैं और टोटल 26 हैं बाहर जो बाज़ार हैं। टोटल अगर इन्हें सारों को मिलाया जाए तो 36 बनते हैं। इन बाज़ारों में हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इनमें गाहक जो है वो कंफर्ट हो, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी चीज़ लेके जाए और दुकानदार उससे रवैया ठीक रखें। दुकानदार गाहक को इस तरह समझे कि जिस तरह उसका दोस्त आया, उसका भाई आया, उसके घर में से कोई आया।
फिर ये दुकानदार कामयाब होंगे। ये दुकानदार अगर गाहक से नफरत करेंगे, जा ले जाते जा ले जाते जा तन में नहीं पैन जी माँ जी। और उसके अलावा इसमें टेंसाइल लगा है। टाउनशिप बाज़ार में आपने देखा है कि टेंसाइल इतना कीमती है और इतना ज़बरदस्त है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है ना, वो हमने लगाई है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने मुस्तकबिल DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफे हैदर की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की फील्ड ऑपरेशन जारी हैं। MCL के तमाम जोन्स की टीमें इन एक्शन नजर आने लगी हैं। रेगुलेशन विंग ने शहर से 173 मकामात से तजावजात का खात्मा कर डाला। इंसदाद तजावजात पर 109 नोटिस और जुर्माने के चालान भी जारी किए गए हैं। SHO TB सिटी ख्वाजा हसन रजा ने कत्ल के मुकदमे में मफरूर इश्तिहारी मुलजिम मोहसिन अली उर्फ जानू शाह को अपनी टीम के हमरा मंजूर ASI की मदद से गिरफ्तार किया है, जबकि मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। मजीद SHO और मुद्दई मुकदमे का क्या कहना था, आज ये जानते हैं उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा हसन रजा SHO थाना TB अपनी टीम के हमरा ये एक मुलज़म इश्तिहारी जो हमारी सीनियर कमांड CCP साहब लाहौर और DIG साहब ऑपरेशन और SP साहब सिटी की तरफ से इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा था, उसमें आज से 2 माह तकरीबन पहले इसने इसी थाना TB के एरिया में आपस में नशे पे आके एक लड़का रुस्तम नाम का जो बउमर तकरीबन 21-22 साल को मर्डर किया था, जिसमें ये इश्तिहारी हो चुका और ये मफरूर था, जिसको जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हमने आज नारोवाल से गिरफ़्तार किया है और फर्दर जो है इसकी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान, ये मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद रियाज, हम अकबरी मंडी के रहायशी हैं। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मेरा बेटा कत्ल हो गया था पहले मुहर्रम के दिन, जिस मैंने थाना TB सिटी मुकदमा दर्ज करवाया था कत्ल का। 3 मुलज़म जो है मौके पे पुलिस TB सिटी ने पकड़ लिए थे और जिनमें से एक इश्तिहारी था मोहसिन अली उर्फ जानू शाह, जो कि ऑलरेडी क्रिमिनल कई इसने कत्ल किए हुए हैं, कई डकैतियाँ, कई इसके बेशुमार मुकदमात हैं। ये बचता था इसलिए कि इसका ID कार्ड इसने कभी अपना आज तक ID कार्ड नहीं बनवाया था, लेकिन थाना TB सिटी वालों की मेहरबानी से, दिन रात की उनकी मेहनत से हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने दिन रात की मेहनत से इसको नारोवाल जाके रेड करके तो इसको मोहसिन अली उर्फ जानू शाह को गिरफ्तार किया। हम थाना TB सिटी SHO साहब के मशकूर हैं, लाहौर पुलिस के मशकूर हैं। लाहौर पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मौसम सरमा में सार्फिन को गैस की फराहमी और गैस प्रेशर की सूरत हाल कैसी रहेंगी और किन औकात में फुल प्रेशर के साथ सार्फिन को गैस मिल सकेगी। गैस की बेहतरीन फराहमी के लिए लाहौर में कितने किलोमीटर बोसीदा गैस पाइपलाइंस को तब्दील किया जा रहा है, इस हवाले से जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आसिम अली से, जो कि इस वक्त GM सुई गैस लाहौर डिवीजन बिलाल असगर के हमरा मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जनरल मैनेजर बिलाल असगर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर्दियों में गैस की सूरत हाल कैसी रहेगी और किन औकात में जो है गैस की फराहमी जो है अपने सार्फिन को यकीनी बनाई जाएगी। जी सर, बताइएगा किन औकात में गैस की सूरत हाल है वो सार्फिन को यकीनी बनाई जाएगी। जी इंशाल्लाह ताला इन सर्दियों में हम 3 खाने के औकात में सार्फिन को गैस मुहैया करेंगे और ये बिला तात्तुल गैस की फराहमी होगी। मीनवाइल जो इस दौरान हमें शिकायत मौसूल होंगी उसके लिए हमने स्पेशली 90 टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी, जिसमें मेंटेनेंस और CS दोनों महकमों की टीमें शामिल हैं और जो भी कंप्लेंट हमें मौसूल होगी वो इंशाल्लाह ताला हम विदाउट एनी डिले उसको एड्रेस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि लाहौर में कितने किलोमीटर की बोसीदा पाइपलाइंस जो हैं वो नेटवर्क तब्दील किया गया है और आया कि क्या प्रेशर में बेहतरी आएगी ये नेटवर्क तब्दील करने से? जी बिल्कुल, पिछले साल हमने 276 किलोमीटर का नेटवर्क तब्दील किया है और इस साल हमने 249 किलोमीटर नेटवर्क तब्दील करना है, जिसमें से हम तकरीबन आधे से ज़्यादा नेटवर्क तब्दील कर चुके हैं इस साल का भी। अब उससे बेहतरी जो अभी तक आई है कि हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जिसमें गैस नहीं पहुंच पाती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनमें गैस की तरसील जो उनसी है वो बेहतर हो चुकी है
اور مزید جو ہم بوسیدہ پائپ لائنز تبدیل کریں گے اس سے مزید گیس کے پریشر میں بہتری آئے گی. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جی ایم سوئی گیس موجود تھے اور آنے والے دنوں میں جو ہے موسم سرما میں گیس بہتری ضرور پیش آئے گی اور گیس جو ہے صارفین کو انشاءاللہ تینوں کا. کمشنر لاہور و ڈی جی ایل ٹی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ایل ٹی اے سٹی جنرل سیکٹر سی بلاک کی پوزیشن کے بارے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. اجلاس میں ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی بریفنگ دی. اجلاس میں جنرل سیکٹر کے سی بلاک کے پلاٹس کی پوزیشن کا ایکشن پلان کیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں گے اس پر کامران علی. جی دسمبر کے پہلے ہفتے میں ایل ڈی اے سٹی جنا سیکٹر کے بلاک سی کے پلاٹوں کی پوزیشن دی جائے گی. پہلے مرحلے میں سی بلاک میں 1500 مالکان کو قبضہ دیا جائے گا. یہ اجلاس میں ایک بریفنگ دی گئی ہے. کمشنر و ڈی جی ایل ڈی اے نے ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانے کے لیے ٹائم لائن طلب کر لیا ہے. اسٹریٹ لائٹ، سائن بورڈ، سڑکوں کی تعمیر کے پیش بارے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. اجلاس میں ایل ڈی اے سٹی کے دیگر بلاکس اور سیکٹر کی ترقیاتی پلان پر بھی بریفنگ دی گئی ہے. اجلاس میں چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین، ایڈیشنل ڈی جی یو خالد گرائیہ، چیف میٹروپولیٹن پلاننگ ندیم اختر زیدی، ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈ کوارٹر نے شرکت کی ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی، ڈائریکٹر فنانس، ڈائریکٹر سٹی اینڈ آئی این ایس پی آس پاک اور ایل ڈی اے کے متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی ہے. جی کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کا غیر ملکی کوچنگ سٹاف ہٹانے کا اصولی فیصلہ. پی سی بی چیئرمین نے سابق کپتان اور کرکٹرز کو آج اہم مشاورت کے لیے طلب کر لیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا غیر ملکی کوچنگ سٹاف کا اصولی فیصلہ ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس وقت خبر کے حوالے سے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا غیر ملکی کوچنگ سٹاف کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. پی سی بی چیئرمین نے سابق کپتان اور کرکٹرز کو آج اہم مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ حمزہ عباسی سے جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی حمزہ بتائیے کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں ناقص پرفارمنس پر جو ہے پی سی بی چیئرمین نے آج لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں جو ہے سابق کرکٹرز کو طلب کیا. ان میں یونس خان، محمد حفیظ، سہیل تنویر شامل اور مشیر کھیل پنجاب جو ہے وہاب ریاض، وہ بھی آج کی اہم بیٹھک میں اپنی رائے دیں گے اور جو لاہ عمل ہے مستقبل کا اس حوالے سے جو ہے اہم فیصلے آج متوقع ہیں. دیکھیں جو آن لائن کوچنگ کی جا رہی ہے، جو ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر ہے، یہ ریموٹ کوچنگ جو کی جا رہی ہے یہ اس سے پہلے ہم نے کبھی کرکٹ میں نہیں دیکھی. اور جو جس طرح کی ان کی منصوبہ بندیاں اور جو فیصلے ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں سلیکشن پر بھی، وہ ہمیں دیکھنے میں جو نظر آ رہے ہیں وہ بالکل ایک نیگیٹو امپیکٹ دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے ایشیا کپ میں، اس میں بھی پرفارمنس دیکھی ہے اور ورلڈ کپ میں بھی پرفارمنس دیکھی ہے. اور جو کوچز ہیں غیر ملکی وہ کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو پرائیورٹی نہیں دیتے. اگر پرائیورٹی دیتے تو جو مورکل سابق ساؤتھ افریقن بولر ہیں وہ کبھی بھی اس طرح ریزائن نہ کرتے جس طرح انہوں نے آسٹریلیا کے ایک اہم دورے سے قبل جو انہوں نے کل ریزائن کیا ہے. اور آج جو اہم میٹنگ ہے اس میں یہ کبھی امکان ہے کہ جو یونس خان ہے ان کو چیف سلیکٹر جو ہے مقرر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور جو توصیف احمد ہے جن کو چند روز قبل جو ہے ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا چیف سلیکٹر کا، ان کو بغیر پرفارمنس کے جو ہے وہ ان کی کمیٹی کو فارغ کر دیا گیا ہے. دیکھیں اگر اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا، جو کوچنگ سٹاف غیر ملکی 7-7 کروڑ سالانہ لے رہا ہے، جو کھلاڑی 60 لاکھ منتھلی لے رہے ہیں، تو اگر پرفارمنس نہیں دکھائی جا رہی تو پھر ان سے یہ کانٹریکٹ واپس لیے جائیں. اور یونس خان جن کی قیادت میں ہم 2009 کا ورلڈ کپ بھی جیتے اور یہ پاکستان ٹیم 1992 کی بھی چیمپئن ہے اور یہ تیسرا گزشتہ 3 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں. ہم راؤنڈ سٹیج سے باہر آ رہے ہیں. اگر اف اینڈ بٹس پہ ہی ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی ٹیم کو جو ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے اس سے یہ جواب طلبی لینی چاہیے اور جو کمیٹی ہے اس کو تشکیل دے کے یہ پوری انکوائری ہونی چاہیے جس طرح سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کی اور انہوں نے اپنے کرکٹ بورڈ کو فارغ کیا. تو اگر اسی طرح کے فیصلے اور اگر اسی طرح کی یہ جو کوچنگ سٹاف ہے اگر یہ چلتا رہا تو پاکستان کرکٹ ٹیم آنے والے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ ہمیں کوالیفائرز میں نظر آئے گی. کیونکہ جیسے ہاکی کا زوال ہم دیکھتے ہیں کہ 4 دفعہ کی عالمی چیمپئن گزشتہ 3 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر سکی اور یہ پاکستان کی ٹیم کا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ گزشتہ 3 ورلڈ کپس میں یہ راؤنڈ سٹیج سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تو آج جو اہم فیصلہ جو کیے جانے کا امکان ہے وہ یونس خان جو ہے ان کو چیف سلیکٹر مقرر کیے جانے کا امکان ہے اور کپتان بابر اعظم اور ہیڈ کوچ جو گرینڈ بیٹمین ہے ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر ہے ان کو کل طلب کیا گیا. یہ رپورٹ پیش کریں گے جو ٹیم نے ناقص کارکردگی دی ہے. اور جو کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے دیکھیں وہ بہت انفلوئنشل ہوتا ہے. آپ ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کے ڈریسنگ روم میں جی بہت شکریہ حمزہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے.
खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।